Very great afternoon, dear students. Today we are going to discuss very important topic: cross product of two vectors in terms of their components. So, dear students, let's start. Let us suppose that we have two vectors, vector A and vector B. These two vectors can be. Let us suppose that we have two vectors, vector A and vector B. These two vectors can be written in terms of their rectangular components as. Let us suppose that we have two vectors, vector A and vector B. These two vectors can be written in terms of their rectangular component as vector A is equal to AXI, AYJ, AZ, K, and vector B equals to BXI, BYJ, BZ, K. Number 1 and this is number. Here we have to take the cross product of two vectors. We have to take the cross product of two vectors. इंग्लिश में थोड़ा सा ध्यान रखें. I cross I equal to 0, J cross J equal to 0, K cross K equal to 0, I cross J equal to K, J cross K equal to I, और K cross I equal to J. I cross J, K, J cross K, I, K cross I equals to J. Similarly, J cross I equals to minus K, K cross J equals to minus I, and I cross K equal to minus J. Cross K, I cross J K, J cross K I, K cross I J. Similarly, J cross I minus K, K cross J minus I, and I cross K minus J. I cross I 0, J cross J 0, and K cross K 0. ये वाला हम यहाँ यूज करेंगे. Clear? So cross product of two vectors, vector A cross vector B equals to AXI, AYJ, AZ, K cross BXI, BYJ, and BZ. Clear? A cross B vector A लिख दिया, cross vector B in terms of their rectangular components. Clear बेटा? Okay. From here, vector A cross vector B equals to AXI से मल्टीप्लाई करें AX into BX, AX into BX, I cross I, AX BY, I cross J plus AX BZ, I cross plus AY जैसे मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से ए बाई बी से करोगे क्या बन जाएगा यहाँ से बेटा ए बाई
बी एक्स जे क्रॉस आई ए वाई मल्टीप्लाई बी वाई जे क्रॉस जे ए वाई बी जेड जे क्रॉस ए प्लस ए जेड से करेंगे हम ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस जे प्लस ए जेड बी जेड के क्रॉस के। क्लियर है? मल्टीपल चेक करें बेटा। ax bx I क्रॉस I, ax by I क्रॉस j, ax bz I क्रॉस k। Similarly, ay bx j क्रॉस I, ay by j क्रॉस j, ay bz j क्रॉस k plus az bx k क्रॉस I, az by k क्रॉस j, az bz k क्रॉस k। क्लियर है यहाँ से? ओके, एक बार मल्टीप्लाई चेक कर लें इससे, कोई प्रॉब्लम इसमें? अब यहां से आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। चेक करें, सिंप्लीफाई करें यहां से तो क्या हो जाएगा हमारे पास। सिंप्लीफाई करेंगे जब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा। सिंप्लीफाई कितना आ रहा है? सी फ्रॉम हियर a क्रॉस b इक्वल टू ax bx I क्रॉस I इसके इक्वल है 0 को कर दिया बेटा। ax by I क्रॉस j, you can see from here k, I क्रॉस j k, ax bz I क्रॉस k, you can see from here I क्रॉस k, चेक करें I क्रॉस k माइनस j, I क्रॉस k माइनस j प्लस a by bx j क्रॉस I, see from here j क्रॉस I माइनस k, a by b by j क्रॉस j 0, a by b z j क्रॉस k I प्लस a z b x a क्रॉस I, you can see from here a क्रॉस I j क्रॉस I j a z b y a क्रॉस j माइनस I प्लस a z b z a क्रॉस k 0। क्लियर है बेटा? यहाँ तो कंफ्यूजन? ओके, लेट अस सी क्या बन जाएगा। बेटा देखो ऐसा है, प्रैक्टिस इसकी बहुत अच्छी करें और बार बार इनकी प्रैक्टिस करें तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आएंगे। फॉर्मूला आपको सारे पता होने चाहिए। क्लियर? लेट अस सी फ्रॉम हियर वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इक्वल्स टू ax bx 0 प्लस ax by के वेक्टर माइनस ax bz j वेक्टर माइनस a by bx के वेक्टर प्लस
a by b by 0 plus a by b z I a by b z I plus a z b x j minus a z b y dot y plus 0। क्लियर बेटे? ओके, अब आप यहां से क्या करें, i वाले अलग कर लें, j वाले अलग कर लें और k वाले अलग कर लें। ठीक है, जिसके साथ यूनिट वेक्टर i लगा है उनको अलग कर लें, जिसके साथ यूनिट वेक्टर j लगा है उनको अलग कर लें, जिसके साथ यूनिट वेक्टर k लगा है उनको अलग कर लें। तो लेट अस सी फ्रॉम हियर a क्रॉस b, i वाला यूनिट वेक्टर है कौन सा i वाला आपके पास ये a by b z a by b z I यूनिट वेक्टर माइनस a z b y I यूनिट वेक्टर। आफ्टर दैट वी हैव टू टेक j वाला चेक करते हैं a z b x a z b x j माइनस a x b z j a x b z j प्लस k वाला बेटे k a x b y k माइनस a y b x k। क्लियर है? अब बेटा ये चीज चेक करनी है कि क्वेश्चन हमारा सही चला हुआ है या गलत चला हुआ है। बहुत इजी है, चेक करें। देखो आई वाले लिए आपने, आई वाले देख लिया पहले। देखो a by b z a z b y y z z y a z b x a x b z z x यहाँ पे x है a x b y a y a x। क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही चल रहा है। क्लियर है? करेंगे? ओके, तो क्वेश्चन बेटा अपना हो गया लगभग। यू कैन सी फ्रॉम हियर हमारा क्या हो गया, a क्रॉस b, यहां से हम लिखते हैं वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इक्वल्स टू a by b z माइनस a z b y a by b z minus a z b y वेक्टर I प्लस a z b x minus a x b z वेक्टर j प्लस a x b y a y b x और यहाँ से आगे आपके पास ये k। क्लियर है? So this is the result for dot product of two vectors and it can be written as from here. So simply we can write it as vector A cross vector B is equal to AY BZ AZ BY I plus AZ BX AX BZ J plus AX BY AY BX AX BY vector K. This is the our result for cross product of two vectors in terms of their components. AY BZ minus AZ BY I AZ BX AX BZ J AX BY minus AY BX K।
क्लियर है? समझ आ गया बेटा आपको? यू कैन चेक फ्रॉम हियर। ओके, करें इसको चेक। ये तो आपके पास आ गया। अभी हम जो है इस रिजल्ट को कैसे कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ देयर कंपोनेंट, हम एक और मेथड है उससे भी कर सकते हैं, जैसा सीक्वेंस है। Cross product of two vectors in terms of their components. Another method, let us see. तो इसमें लिखोगे let us suppose that we have two vectors. Let us suppose that we have two vectors, vector A and vector B. So vector A equals to vector AXI AYJ plus AZK. Equation number 1. Similarly, vector B equals to PXI PYJ VZK. This is equation number 2. Let us suppose that we have two vectors, vector A and vector B, and these two vectors can be written in terms of their rectangular components like this. Clear? Now we have to find the A cross B. Here we have to find the A cross B of two vectors. तो कैसे बन जाएगा? अब आप यहाँ क्या करेंगे बेटा? यहाँ लिखते हैं आप I J और यहाँ लिख दो K। ऐसे बनेगा। Here we have to take the cross product of two vectors. From here, write down the coefficient of I, J and K from equation 1. From equation 1 and 2, write down the coefficient of I, J and K. From 1, I का coefficient क्या है? AX. सेकंड से I का coefficient क्या है? BX. यहाँ से J का coefficient क्या है? AY. यहाँ पे क्या है? BY. यहाँ क्या है? AZ और यहाँ जाएगा इक्वेशन में I का कोएफिशिएंट AX, यहाँ पे I का कोएफिशिएंट BX लिख दिया। यहाँ पे इक्वेशन में J का कोएफिशिएंट AY, यहाँ पे BY, यहाँ पे K का कोएफिशिएंट AZ और यहाँ पे BZ। क्लियर है बेटे? कोई दिक्कत चेक कर सकते हैं आप यहाँ से। अब आपको क्या करना है? We have to find out the क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ देयर कंपोनेंट। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखें I लिख दिया हमने, यहाँ से ब्रैकेट लगा दिया इसको। आपने लिखा है यहाँ से I यूनिट वेक्टर, ये I यूनिट वेक्टर आपने यहाँ से लिख दिया। ठीक है, I लिख दिया यहाँ से। तो जब I लिखोगे इसको आप जो है ऐसे हाथ से रख दें, इनको मल्टीप्लाई कर दें। I वाला लिखा, इसको हाथ से रख दिया, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दें। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा AYBZ माइनस AZBY। तो ये दोनों को मैंने क्या कर दिया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैं I के लिए निकालूंगा तो यहाँ पे मैंने रख दिया, ये क्या बन जाएगा? AYBZ माइनस AZBY मल्टीप्लाई कर दिया AYBZ माइनस AZBY। राइट डाउन हियर AYBZ माइनस
AZ BY आफ्टर माइनस J, फॉर्मूले में ही माइनस J है, फिर माइनस J I लिखा तो आफ्टर यू राइट माइनस J, इसके यहां से हटा दें हम। क्लियर? जब माइनस J लिखोगे यहां हाथ रखो आप, इस पे हाथ रख दिया आपने, ये बन जाएगा AX BZ माइनस AZ BX, AX इंटू BZ माइनस AZ BX। तो लिखो आप AX BZ माइनस AZ BX। क्लियर? प्लस K जब देखो फॉर्मूले में बेटा पहले I फिर माइनस J फिर प्लस K जब आपके पास आएगा प्लस K तो K में आप रख सकते हो, तो क्या बन जाएगा ये AX BY माइनस AY BX, AX BY मल्टीप्लाई कर दो AX BY माइनस AY BX, इनको ये बन जाएगा AX BY माइनस AY BX। ठीक है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, जब भी आप जैसे मैंने देखो K कर दिया, पहले लेफ्ट वाले को मल्टीप्लाई करना फिर इधर वाले को। देखो AX इस साइड का AX BY माइनस AY BX। क्लियर? इनको आप हटाओ, तो आगे आपके पास A क्रॉस B वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू AY BZ AZ by माइनस कॉमन ले ले यहां से, माइनस कॉमन ले लूंगा यहां से, माइनस J यहां से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा मेरे पास AZ BX माइनस AX BZ प्लस K, आपके पास आ जाएगा AX BY AY BX। क्लियर है? तो A क्रॉस B आपके पास क्या गया हमसे, A क्रॉस B फाइन करते हैं यहां से AY BZ AZ BY माइनस माइनस आपके प्लस J AZ BX AX BZ प्लस K AX BY AY BX। ठीक है बेटा यहां से, so this is the formula for cross product of two vectors in terms of their rectangular components। So from here vector A cross vector B equals to vector I AY BZ AZ BY plus J AZ BX AZ BX AX BZ plus K vector AX BY AY BX, and this is our result. You will write AY BZ AZ BY plus AZ BX AX BZ AX BY AY BX। रिजल्ट आपका सही है बेटा, गलत है आपको पता ही, यहीं से चल जाएगा। मैंने आपको बताया था पहले भी YZ ZY ZX XZ XY YX। ठीक है, अगर इससे ऑर्डर आपका चेंज होता है आंसर आपका गलत है। So dear students, here we have discussed the cross product of two vectors in terms of their components, and I hope ये क्वेश्चन बेटा आपको समझ आ गया होगा। So okay dear students, thank you, have a nice day।